Karthik. Bhavik, you are on mute. Okay. So, hello everyone. This is Bhavik Chopra, a core team member of Developers Students Club, Silverrock University. On the behalf of whole the team and Silverrock University, we are welcoming you all. We all know present scenario, but I really appreciate you are putting your efforts in advancing your own knowledge and learnings. So, also to make connectivity viable to all the Discord, to all the community members, we have a Discord server. You can join us. You can find the link in the description or chat box. And here you can see the basic outlook of our server. We have multiple channels with all their own significance. Also, you can post your doubts regarding Android topics, Android in the general section chat box, or our facilitators and DSC would be there to assist you. Feel free to interact with our members and grow connections. Yeah, very important guidelines for today's event. The session would be recorded for official purpose. In case of any doubt in the session during the session, you can write your doubt in the chat box. If time allows, we would be having a Q&A session in the end of the session. During that, you can unmute yourself and ask your question, or you can also write your questions in the chat box. We will be very happy to assist you. So, talking about yesterday's session, started our session. We started learning Android Kotlin with our facilitator Ojaswani. We learned some basic concepts of Kotlin like main function, print statements, variables, repeat, and functions. We also installed Android Studio and made our first app. So, without taking much of time, I hand over a virtual stage to a facilitator, Mr. Ojaswani. Over to you. Yeah. Uh, Karthik, just a minute, share screen में access करते हैं पहले. Yeah, sure. So, Bhavik, just explain the event guidelines, then I will take over. Bhavik, you are on mute. Very important guidelines for today's event. The entire session would be recorded for official purpose. In case you have any doubt, you can share your doubts in the chat box. Till then, you will be mute. If you have any doubts, please share your doubts in the chat box. And also, in if time allows, we will be having a quick Q&A session. So till then, keep learning and be ready with your doubts. And yeah, we'll start. Okay. So, hello everyone. Hope you all are doing well and take care of yourself and your family. Those who are present in yesterday's session, welcome back, guys. And for who joined the first time, hello guys, welcome to the session. So let me introduce myself. I am Ojaswani from third year computer department, and I am the Android Study Jam facilitator for DSC Silver Oak University, and I am conducting this Android Study Jam series. So let's start. So there are some prerequisites, same as yesterday. And if you want to do hands-on with me, then you also need Android device and USB cable to connect your device to the computer. Else, you can use emulator of Android Studio to emulate the app. So let's start today's session. So today is the session 2 of new to programming track. Yesterday we have one session. In that session, we have learned about
this concept which Bhavik explained before, and we also make this DSCF. And now anyone have doubt in this or completing the pathways, you can ask me on Discord anytime, or after the session you can message me. So let's start with today's pathway. Okay, so yesterday we have completed these first 3 tracks of Unit 1, and today we will work on this 4th track, which is Android Basics, add a button to an app. Okay, so the 4th pathway is basically Android Basics. Today we will learn some concept about object-oriented programming and make an interesting this dice rolling app. Okay, so let's start with today's first session, which is the random number. And I am showing the code in Kotlin Playground, and you can also, so that you can also code that with me. Link of the Kotlin Playground will be in the chat. Team members, can you please paste the link in the chat box? Okay, just a minute, guys. Yeah, I have sent the link in the chat. Okay. So let's start with Kotlin Playground. So here you can see this is the Kotlin Playground, and link is in the chat box. You can also code with me. So let's start with our first topic, which is random number. So I am just paste one program here. So this is the program where there is a one main function, and I have one variable which is dice range, where I am okay. दिस इज डाइस रेंज करके एक फंक्शन है जहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है, जहाँ पे मैंने लिखा है 1.6. उसका बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे कोटलिन में हम डबल डॉट इसलिए यूज करते हैं कि हमें एक रेंज लेनी हो, तो लाइक हमें 1 to 6 की रेंज देनी हो तो हम 1.6 लिखते हैं. अगर हम सेम चीज अगर प्रिंट करने जाए तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है. ओके, सो यहाँ पे हमें मिला 1.6 सेम. और हमें अगर पता है कि हम जनरली हम अगर हमें स्ट्रिंग यूज करनी हो, सॉरी गाइस, ओके, अगर हमें स्ट्रिंग यूज करनी हो तो हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल कोट लिख के 1.6 वैसा लिखेंगे तो ऐसा प्रिंट होता है. पर हमें यहाँ पे जब रेंज देनी होती है तो भी हम 1.6 करके लिखे तो सेम ही आता है. मतलब वो एज अ उसको ना तो वो स्ट्रिंग लेता है, ना ही वो एज अ प्रॉपर इंटीजर उसको काउंट करता है. सो अब हमें अगर मुझे प्रिंट करवाना हो या फिर उसमें से कोई हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या, तो बेसिकली उसके लिए एक फंक्शन है. लाइक अगर हम एक वेरिएबल बना देते हैं वेल साइड में हम लिख देंगे डाइस रेंज डॉट रैंडम. ओके, एंड यहाँ पर हम साइड की वैल्यू प्रिंट करा देंगे. सो हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिली 1 की. अगर हम वापस दूसरी बार हम उसको रन करें तो हमें मिलेगी 6. और अगर तीसरी बार वापस करें तो अगर रैंडम फंक्शन से जनरली रैंडमली वैल्यू जनरेट होते हैं और हमने रेंज दिया है 1 to 6. सॉरी, अगर हम रेंज चेंज करें, ओके, अगर लाइक हम यहाँ पे लिख दे 1 to 10. सो अब देखते हैं क्या आता है. अगर 1 to 10 देखे तो 1 to 10 के बीच में वो कोई भी वैल्यू वो लेगा, रैंडमली जनरेट करेगा. ओके, सो अब आते हैं मेन कंसेप्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट होता है, जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. अब बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है,
कि हम सबको बताइए कोटलिन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Then the first thing which come up in our mind is like class and object. So class and object is basically a fundamental concept of data structure and algorithm. So basically class क्या होता है कि class is a user defined data type. Sorry guys. Okay. Class is basically user defined data type. Like we yesterday see where and well, which are also the two data types, but they are defined by the Kotlin language. Okay, with class we define our own data type. So let's understand exactly what is class. Basically, class is the collection of variable and functions. Okay, so okay, here you can see I take one class dog, and there here I is dog 1, dog 2, dog 3, dog 4. So यहाँ पे 4 डॉग है, तो हमें क्या करना है कि उसके बीच में हमें सबका एक एट्रीब्यूट है और सबके पास बिहेवियर है जो कॉमन है. लाइक डॉग वन में उसकी ब्रीड भी होगी, एज होगी, कलर होगी. सेम डॉग टू का भी ब्रीड होगा, एज होगा, कलर होगा. देन बिहेवियर में बार्क, स्लीप, ईट, सेम चारों डॉग का सेम है. तो अगर हम इसका प्रोग्राम लिखने जाए तो क्या पहले डॉग 1 का लिखना पड़ेगा कि ब्रीड इज इक्वल्स टू लेब्राडोर, देन एज इज इक्वल्स टू लाइक 10, कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक. देन अगर हम डॉग 2 का लिखे तो ब्रीड इज इक्वल्स टू breed is equals to like pug, then Ojas, age is equals to 5. Sorry. sorry to interrupt, but can you turn off the attendee annotations? Wait. Okay, it will show in the screen share bar on the more option. So you can turn off attendee, disable attendee Okay, annotation. so yeah, got it. Sorry. No problem. Go on. Okay. So let's continue with. Okay. So अगर मुझे इसका प्रोग्राम बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा कि अगर मैं सबका इंडिविजुअल बनाना चाहूँ तो बहुत लंबा प्रोग्राम आ जाए. उसके लिए उसकी जगह एक कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. तो क्लास क्या करता है बेसिकली जो भी उसका जो एट्रीब्यूट्स होगा जो सब में कॉमन होगा उसको एक प्रकार से उसका वो क्लास बना देता है जो हम सबकी जगह यूज कर सकते हैं कॉल करके, सेम एज लाइक फंक्शन. ओके, सो अभी आगे चलते हैं. यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया. तो स्टूडेंट की क्या क्या होते हैं, एक तो नेम होता है, देन रोल नंबर होता है. सो मैंने एक क्लास बनाया है स्टूडेंट जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, एक तो लिया नेम और दूसरा लिया रोल नंबर. जिसमें मैंने नाम लिखा हो जस्ट, रोल नंबर में लिया 1. सो अब मुझे इसको कॉल कराना है. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है s1 और उसमें मैंने कॉल किया हुआ है मेरा क्लास. तो s1 क्या है, तो बेसिकली s1 को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो क्लास का इंस्टेंस होता है जो हम किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं. जैसे हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं तो क्लास को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते. उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि उसको एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है. हमें उसके अगर प्रॉपर्टीज यूज करनी हो क्लास के अंदर के तो सो यहाँ पे मुझे अगर ये करना हो, प्रिंट करना हो, तो मुझे क्या s1 डॉट नेम करूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा ओजस. देन s1 डॉट रोल नंबर करूंगा तो मुझे मिलेगा 1. सो ये मैंने समझा दिया वर्बली. हम अगर इसका प्रैक्टिकल देखने जाए, वेट लेट मी, ओके, सो हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं. सी मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्ट कॉल करवाया और उसमें से प्रॉपर्टीज कॉल करवाई. प्रॉपर्टीज में क्या था, नेम. सो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज, सेम यहाँ पे s1 डॉट रोल नंबर. अब मुझे क्या यहाँ मुझे उसमें चाहिए कि मेरे को दूसरा नाम भी ऐड करना है मुझे. तो मैंने लाइक सेम, ओके, मुझे चाहिए एक दूसरा मैंने ऐड किया s2 इज इक्वल टू दूसरा स्टूडेंट के लिए. सॉरी गाइस. ओके, अब मुझे क्या दूसरे स्टूडेंट में मेरे को चाहिए कि मुझे दूसरे स्टूडेंट में भाविक दिखना चाहिए और उसका रोल नंबर मेरे को 2 दिखना चाहिए. तो वो करने के लिए कैसे करेंगे,
उसके लिए हमें लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, s2 डॉट नेम इज इक्वल टू भाविक लिख दिया और s2 डॉट रोल नंबर में वैल्यू दे दी 2। ओके, अगर मैं ये प्रिंट कराऊं तो क्या, यहाँ पे एक एरर है, वैल्यू कैनॉट बी रीअसाइन। जो हमने कंसेप्ट कल पढ़ा था कि वेल और वेर वाला, वेर में अगर वेल डेटा टाइप यूज करें तो वो हमेशा के लिए वो वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन हो गई, और अगर वेर यूज करें तो डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी यूज होगी। ओके, यहाँ पे हम वेर चेंज कर देंगे और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर क्या आया, द इंटीजर लिटरल डज नॉट कंफर्म। क्यों, यहाँ पे मैंने रोल नंबर में देखो, यहाँ पे भले ही 1 लिखा हो तो पर वो कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसको एज अ स्ट्रिंग गेट करेगा। तो हमें अगर ये चेंज करना हो तो इस पे भी कोटेशन लगा देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें दो आउटपुट मिल गए। सो यहाँ पर क्या, मैंने दो अलग अलग वैल्यू ली, पर मैंने सिर्फ एक ही क्लास कॉल करा के वो दोनों प्रिंट हो गई हमारी वैल्यूज। ओके, नाउ हमारे क्लास और ये कंसेप्ट हो गया। अगर हमें आज हम बनाने वाले डाइस रोल है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें कि उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाएंगे डाइस डाइस वाला। ओके, और अब हम अभी दो कंसेप्ट सीखे, एक तो क्लास, हमें दो कंसेप्ट सीखे, ये हो गया हमारा रैंडम नंबर और क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और हम दोनों को इंटीग्रेट करके एक डाइस करके एक क्लास बनेगा हमारा, ये क्लास डाइस, जिसमें हमने लिया है एक वैल्यू वेरिएबल लिया साइड्स, कि डाइस की 6 साइड्स है वैसे, और हमने उसमें एक फंक्शन बनाया है रोल। अब रोल क्या करेगा कि हमारी जो रैंडम नंबर है उसमें से कोई एक वैल्यू पिक करेगा और उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको कॉल कराना है क्लास को। तो सेम जैसे मैंने पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माय फर्स्ट डाइस करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने क्या किया, डाइस नाम का क्लास वहां पे कॉल करा दिया, और हमें क्या कराना है कि उसकी साइड्स कितनी है वो हमें प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलन माई फर्स्ट डाइस डॉट साइड्स। ओके, और हमें क्या करना है कि ये फंक्शन रोल करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है कि रैंडम नंबर, हमें हमें वो कॉल करना हो तो क्या, माई फर्स्ट डाइट्स डॉट रोल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। तो अगर बेसिकली हमें कोई भी प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर की हमें अगर कॉल करानी है तो डॉट करके हम उसको ऑब्जेक्ट डॉट, ओके, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज वैसे हम उसको कॉल करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें में 6 और 6 अगर हम वापस रन कराएं तो क्या आएगा, 6 और 4, क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडम नंबर यूज किया है। सो ये डाइस का हमें एक और बार समझ लेते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डाइस का क्लास बनाया, देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया साइड्स का, साइड्स इज इक्वल टू 6, एंड बेसिकली क्लास में क्या क्या आते हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आते हैं, तो मैंने उसका एक और फंक्शन उसमें बनाया, फंक्शन रोल। अब रोल का काम क्या है कि वो यहाँ पे जो रैंडम नंबर दिया है 1 to 6 में से वहां से एक रैंडम नंबर लेगा और उसको प्रिंट करेगा। ये बेसिकली ये फंक्शन काम करता है, तो हमें ये चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, हमें वो क्लास को कॉल कराना है। तो क्लास को कॉल कराने लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बनाया माई फर्स्ट डाइस करके ऑब्जेक्ट। और अब मुझे वो ऑब्जेक्ट बना तो मुझे क्लास की प्रॉपर्टीज करनी है, तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये ऑब्जेक्ट माई फर्स्ट डाइस एंड डॉट प्रॉपर्टीज मेरी कौन सी है, साइड्स, यहाँ पे माई फर्स्ट डाइस एंड प्रॉपर्टीज मेरी कौन सी है, रोल। ओके, गॉट इट। ओके, हमें नेक्स्ट देखते हैं एक। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे साइड्स डायनेमिकली लेनी है। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया कि यहाँ पे मैंने साइड्स वेरिएबल डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पहले लिखा था 6, कि जो बेसिकली साइड्स की वैल्यू है, वो मैंने उसकी जगह मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाला, बाकी कुछ चीजें मैंने चेंज नहीं किया। ओके, वेट, सॉरी, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक डाइस रोल करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मेरा माई फर्स्ट डाइट डॉट रोल, मतलब ये रोल फंक्शन जो भी मुझे आउटपुट देगा, ओके, वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा।
अब यहाँ पे अगर पीछे वाले हम फंक्शन देखें और इस फंक्शन में एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। वो क्या डिफरेंस है कि मैंने यहाँ के फन रोल करके मैंने उसके अंदर प्रिंट एलन यूज किया था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे एक रिटर्न करके यूज किया है। रिटर्न बेसिकली क्या करता है कि अ, हमें वैल्यू की वो कुछ हमें एक वेरिएबल रिटर्न करता है, हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, यहाँ पे पर हमें कौन सी वैल्यू, अगर हमें कोटलिन में फंक्शन रिटर्न करवाना हो तो उसके लिए हमें उसके लिए डेटा टाइप देना पड़ता है पहले से उस फंक्शन को। तो सो मैंने यहाँ पे लिखा है फन रोल और यहाँ पे मैंने कॉलन करके डेटा टाइप लिखा है, इंटीजर करके डेटा टाइप लिखा है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में हम वेरिएबल को डेटा टाइप पहले ही डिफाइन करते हैं, सेम चीज यहाँ पे फंक्शन में हमें करनी पड़ती है। ओके, सो इंटीजर अगर वो हम डेटा टाइप डिफाइन करें तो हमें रिटर्न वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, सो रिटर्न रैंडम नंबर। ओके, रोल करेंगे हमेशा डिफरेंस आएगा 6 साइड्स एंड 6, तो जितनी साइड्स होगी उस हिसाब से वो रैंडमली जनरेट करेगा। ओके, सो एक और हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सो इससे भी छोटा हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने क्या कर दिया, हम हर बार डाइस यहाँ पे लिखते थे वेल साइड्स इज इक्वल टू 6, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ही डाल दिया कि नम साइड्स मेरे को जो भी यूजर इनपुट दे उतनी मैं नम साइड्स ले लूंगा, और वो सेम वेरिएबल मैंने फंक्शन में यूज कर दिया नंबर ऑफ साइड्स में। सो अगर मैं यहाँ पे 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं उसको रन करूंगा तो क्या आएगा, 5 आया फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम उसको रन कराएंगे तो उसके 1 आया रैंडमली जनरेट। अगर मुझे 6 की जगह मैंने लिख दिया 10, मतलब जो भी यूजर डालना चाहे वो डाल सकता है वहां पे। सो वो उस हिसाब से ये क्लास में वैल्यूज चेंज होती रहेगी हमारे क्लास में। ओके, सो हमारे आज हमने 2 टॉपिक देखे, एक तो हमारे ये 2 टॉपिक कवर हो गए, रैंडम नंबर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करें, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये चीज हुई तो वो होगी लाइक इफ एंड एल्स, अगर मैं ये करूंगा तो उसका ये इफेक्ट होगा। हम वैसे बोलते हैं ये करेंगे तो ये होगा, वैसा सेम चीज होता है, उसको बोलते हैं इफ एल्स। तो सब लैंग्वेज में इफ एल्स करके एक कंडीशनल कॉन्सेप्ट होता है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस प्रोग्राम में मैंने एक लिया वेरिएबल नम करके, नम करके वेरिएबल मैंने डाली वैल्यू 3, और फिर मैंने क्या लिखा, इफ में मैंने एक, अगर हमें जब भी इफ यूज करना है तो उसके लिए हमें देनी पड़ती है एक कंडीशन। ओके गाइज, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट जा रहा है क्या पेस सही है? अगर समझ ना आ रहा तो बोल देना पेस सही है कि स्लो है, तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। कोई रिप्लाई देना। ओके, गो स्लो। Also, just there are a few questions in the chat. I saw 2-3 questions, so if you can answer them at your own inconvenience, so that's fine. ओके, वेट। ओके, वशिष्ठ ने पूछा कैन वी यूज रिपीट फंक्शन फॉर लार्ज डेटा? यस वशिष्ठ, वी कैन यूज। Okay, another question. In Kotlin, there is no need to use new keyword while creating object. Okay, object के लिए हम new keyword use कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हर बार करना पड़ेगा वैसे जरूरी नहीं है, दोनों चीज है उसमें, करना हो तो कर सकते हैं वैसा। ओके, हाँ। ओके, मुझे 2 क्वेश्चन दिखे। ओके, ठीक है, थोड़ा स्लो जाते हैं हम। सो ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है इफ एंड एल्स। इफ के साथ हमें हमेशा एक कंडीशन देनी पड़ती है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 4, अगर नंबर ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 4, हमें आंसर में मिलना चाहिए। ओके, सो और अगर ये कंडीशन राइट हुई तो ये प्रिंट होगा, अगर रॉन्ग हुई तो क्या, तो हमने एल्स में एक और कंडीशन दी हुई है, प्रिंट एलन द वेरिएबल इज लेस देन 4। सो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे वो ब्रेक और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, अगर इफ की कंडीशन रॉन्ग हुई तो वो एल्स में आगे चला जाएगा और एल्स में जो लिखा है वो प्रिंट होगा।
सो ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या 4 से कम है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हुई इसकी, इसलिए उसने क्या प्रिंट किया, वेरिएबल इज लेस देन 4। अगर यहाँ पे हम 3 की जगह हम लिख दे 5 और फिर रन करें तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 4। सो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, सो ये ऊपर का द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 4 वो प्रिंट कराएगा। ओके, हम वैसे ही अगर हमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल इफ एल यूज करने हो तो उसका एक कंसेप्ट है एल्स इफ करके। जैसे ये मैंने क्या लिया, नंबर इज इक्वल्स टू 4। अब नंबर इज इक्वल्स टू 4 में फर्स्ट मैंने कंडीशन इफ की डाली, नंबर इज ग्रेटर देन 4। नंबर इज ग्रेटर देन 4 में लिखा वेरिएबल ग्रेटर देन 4। देन अगर मुझे दूसरी कंडीशन डालनी है तो मैं लिखूंगा एल्स एंड अगेन तुरंत के तुरंत ब्रैकेट के अलावा मैं लिखूंगा इफ और दूसरी कंडीशन डालूंगा कि num इज इक्वल्स टू 4। सो वहां पे मैंने प्रिंट किया द वेरिएबल इज इक्वल टू 4 और और अगर वो भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो मुझे मेरा प्रोग्राम चला जाएगा एल्स में लिखा है द वेरिएबल इज लेस देन 4। अगर हम इसको रन करें तो क्या 4 इज इक्वल्स टू 4 है, मतलब फर्स्ट इफ कंडीशन रॉन्ग हुई इसलिए वो आगे एल्स में जाएगा। अब एल्स के साथ इफ है उसकी कंडीशन चेक करेगा कि ऊपर के साथ वो कंडीशन मैच कर रही है, अगर यस तो वो ये प्रिंट कर देगा, अगर वो नहीं होती तो वापस आगे एल्स में चला जाता। एक अगर मैं लिखूं 3, सो यहाँ पे क्या वेरिएबल लेस देन 4 क्योंकि पहली दोनों कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। अब अगर मैं सेम चीज यूज करेंगे हम क्लास रैंडम और कंडीशन स्टेटमेंट, हम तीनों यूज करके देखें तो क्या ऐसा एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें मैंने क्या लिया है, सेम जो हमने पहले यूज किया था क्लास, सेम क्लास मैंने यहाँ पर यूज किया है और सेम तरीके से मैंने कॉल कराया हुआ है यहाँ पे। ओके, पर यहाँ पे एक अलग चीज मैंने क्या लिखी है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है लक्की नंबर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे मैंने रोल का जो फंक्शन बनाया है उसमें क्या हमें रिटर्न करेगा कि जो भी हमारा रैंडम नंबर होगा वो हमें ये रोल में रिटर्न करेगा, जो रोल फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो ये रोल रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो सेव होगी। तो अगर हम रोल रिजल्ट और लकी नंबर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, सो अगर रोल रिजल्ट इज इक्वल टू लकी नंबर आ गया तो यू विन, अगर वो कंडीशन सही नहीं हुई कि तो आगे एल्स में जाएगा। एल्स के बाद क्या है, तुरंत इफ है, मतलब एल्स इफ में गया वहां पे वो कंडीशन चेक करेगा कि रोल रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है, नहीं आगे सेम एल्स कंडीशन चेक करेगा, नहीं तो आगे सेम वैसे करके नीचे तक जाएगा और नीचे एंड में हमने लिखा हुआ है सिर्फ एल्स। सो यहाँ पे हमने एक इफ लिया हुआ है और उसके साथ हमने एल्स लिखा कि, और हमें क्या अगर 5 में से लिए पहले 1 2 3 4 5 में से लिया, अगर उसमें से भी नहीं है तो 6 एल्स वाला प्रिंट कर देगा वो। सो हम अगर ये प्रोग्राम रन करके देखें तो क्या आया, डोंट क्राई यू रोल्ड 5, मतलब ये वाला स्टेटमेंट उसने लिया, उसके आगे के सारे इफ कंडीशन उसके गलत हुए इसलिए उसने डायरेक्ट 5th स्टेटमेंट लिया। अगर हम उसको दूसरी बार रोल करें तो क्या आया, अनफॉर्चुनेटली यू रोल्ड 3, मतलब ये स्टेटमेंट लिया। ओके, सो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। हमें क्या हुआ यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे हमें इफ एल्स यूज करने पड़े, तो कोटलिन वालों ने सोचा इतनी इफ एल्स की जगह हम कुछ उसका एक अलग फंक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से ये चीज एक छोटी हो जाएगी। तो उन्होंने एक वैन का कंसेप्ट लाया, इतने सारे इफ एल्स की जगह हमें सिर्फ यूज करना है ये वैन। यहाँ पे क्या होगा, वैन में वहां पे वो लेता है रोल रिजल्ट, यहाँ पे फिर रोल रिजल्ट को वो हर एक के साथ मैच करेगा। सी यहाँ पे अगर रोल रिजल्ट इज इक्वल टू लक्की नंबर हुआ तो वो क्या करेगा, प्रिंट एलन यू वॉन। ओके, देन अगर 1 आया, रोल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 आया तो क्या करेगा, प्रिंट दिस, और रोल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 आया तो वो ये प्रिंट करेगा, रोल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 3 आया तो वो ये प्रिंट करेगा, और अगर रोल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 4 आए जो कि हमारा लकी नंबर है तो वो ये पहला प्रिंट करेगा। सो हम इसको ओके वेट अ मिनट, हाइलाइटेशन एरर, ओके सॉरी गाइस, हम इसको रन करेंगे तो आया यू वन, मतलब क्या मेरा लकी नंबर आ गया यहाँ पे। सो ये सेम मल्टीपल इफ एल्स की जगह वो यूज करता है सिंपल ये
हमें सिर्फ एरो यूज करना है कि मुझे अगर दो चीजों को कंपेयर करना है कि मैंने लकी नंबर आया तो उस हिसाब से मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो मुझे सिर्फ एरो यूज करना है। जहाँ पे हम इफ एल्स में क्या करते थे, इफ लिखते फिर कंडीशन लिखेंगे फिर ब्रैकेट करके उसके अंदर फिर हमें जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो लिखेंगे। अब क्या हमें एक क्वेश्चन है कि इसमें हम अगर एल्स यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम, लाइक वेट सी, अगर मैंने 6 वाला निकाल दिया उसी की जगह मैंने डाला एल्स, मतलब अगर ये रोल रिजल्ट की वैल्यू 6 हुई तो वो ये मतलब ये पहले की चारों कंडीशन तो वो गलत हो जाएगी। लकी नंबर भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, या भी 5 भी नहीं है, तो वो एल्स में चला जाएगा डायरेक्ट। रैंडम नंबर किया 6 आएगा तो ही होगा वो। ओके, सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैन। ओके, सो हमारे क्या हुआ, बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। जो हमें जो थियोरेटिकल हमें करना था, जो रैंडम नंबर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन स्टेटमेंट, अब हम क्या बनेंगे, ये ऐप बनानी है हमें। सो सो लेट्स मूव टू एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, सबको एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है? मेरे को एक बार चैट में बता देना। यस यस, ओके 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 गाइस। सो बेसिकली हमने कल जैसे देखा था कि हमें क्या करना है, अगर हमें नया प्रोजेक्ट बनाया है तो यहाँ से न्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट करके एम्प्टी एक्टिविटी, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का नाम लिख लेंगे। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है डाइस रोल, तो उसका नाम लिखेंगे देन फिनिश। पर मैंने ये पहले से बना के रखी है क्योंकि वो अगर हम रन वापस वो बनेगी तो उसकी ग्रिडल फाइल बिल्ड होगी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखी है। ओके, अब अब हमें क्या है कि डाइस रोल का हमें एक जो हमने उसके लिए हमें एक यूआई चाहिए होगी। यूआई कहाँ से बनेगी, एक यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोजेक्ट में ऐप में जाएंगे, वहां से रिसोर्सेज का फोल्डर है, रिसोर्सेज के फोल्डर में लेआउट और वहाँ पे एक्टिविटी मेन के फाइल मिलेगी हमें। ओके, अब हमें क्या करना है कि उसके लिए यूआई जनरेट करनी पड़ेगी। ये बेसिकली अगर हम न्यू प्रोग्राम बनाते हैं तो ये स्क्रीन आती है। सो हम ये इसलिए टेक्स्ट बॉक्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए डिलीट कर देंगे टेक्स्ट। अब हमें क्या चाहिए कि ये ऐप बनानी है, उसमें क्या क्या, एक तो एक फोटो है मतलब इमेज व्यू है, और एक यहाँ पे एक बटन है रोल का। सो हम पहले बनाएंगे एक बटन। यहाँ पे हमने देखा था पैलेट में से, जैसे हमने कल को टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, अब बटन में क्या, यहाँ पे हम कंपोनेंट ट्री में देख रहे एरर दिखा रहा है। क्या एरर है वो, कि मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट हमने कल पढ़ा था कि वो फ्लेक्सिबल यूआई बनाने के लिए कंस्ट्रेंट देना जरूरी है। तो इसको कंस्ट्रेंट देने के यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में, देन अप एंड डाउन। आप देखो यहाँ पे जितने मैंने ऐड किए यहाँ पे तुरंत आ गए, जितने भी कंस्ट्रेंट मैंने ऐड किए वहाँ पे सब कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिखाएंगे कि आपने कौन से कंस्ट्रेंट कहाँ पे सेट किए हुए हैं। ओके, अब हमारा वो बटन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज कहाँ से, सेम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। हम करेंगे कि मुझे कोड से अगर इमेज व्यू लाना है वहां पे, तो क्या सेम यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लेस देन ब्रैकेट, देन इमेज। जैसे आप आई लिखेंगे वैसे ही वो सजेस्ट करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो कि आपको इमेज व्यू चाहिए, इमेज बटन चाहिए, जो कुछ। सो इमेज भी लिखा। अब उसका मुझे क्या देना है, वो विड्थ और हाइट मांगेगा। हम विड्थ में देखे 160 dp, एंड हम हाइट में देंगे 200 dp। ओके, और हम वापस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है क्या, सेम मिसिंग कंस्ट्रेंट की। तो चलो इसको कंस्ट्रेंट दे देते हैं। इसको हम बॉटम कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो बटन के साथ भी। तो क्या करेगा, इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसे चारों तरफ इसको कंस्ट्रेंट दे देंगे। अब
अब आप कोई भी इसमें इस ऐप को रन कराओगे, ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ पे 0 की जगह हम दे देंगे 8 दे देंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमेशा 8 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बटन लिखा हुआ है, मुझे बटन की जगह चाहिए, मुझे रोल लिखा हुआ लेना चाहिए। सो वहां पे हम वो चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स में अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखा हुआ है बटन, हमें उसमें ये रोल लिखा हुआ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रोल लिखेंगे एंड एंटर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बटन में टेक्स्ट बीच का चेंज हो गया, बटन की जगह आ गया रोल, मतलब अब जब भी हम वो प्रेस करेंगे यहाँ पे रोल आ जाएगा। अब के यहाँ पे एक इमेज भी है, अगर हम यहाँ पे साइड पे पॉइंटर माउस के लेके जाए तो वो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक डालेंगे, उसको एक इमेज अभी के लिए एक डाल देते हैं। जैसे कॉमन एट्रीब्यूट में सर्च सोर्स कॉम्पैक्ट करके है, सर्च ही कॉम्पैक्ट करके वहां जाएंगे, वहां से अगर हम कोई बेसिकली लिखे तो आप ड्रॉएबल्स लिखोगे तो वहां पे आपको एक कोई भी इमेज रैंडम मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए रैंडम इमेज दे देते हैं। अब हमें बटन अब हमें क्या वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हमें चाहिए डाइस के इमेजेस, कि अगर मैं 1 लिखूँ तो वहाँ डाइस पे 1 आना चाहिए, 2 लिखूँ तो 2 आना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या मल्टीपल इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, हमने वो कल भी देखा था, अगेन हम रिपीट करते हैं कल का, कि रिसोर्स मैनेजर में जाएंगे, यहाँ प्लस की साइन हमें मिलेगी, प्लस की साइन क्लिक और इंपोर्ट ड्रॉवेबल्स। अब इंपोर्ट जैसे कि मेरे यहाँ पे सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे है मेरे, तो डेस्कटॉप पे मैंने स्टडी जैम करके डाइस इमेजेस करके, तो मुझे सारे डाइस की इमेजेस चाहिए। सो मैं शिफ्ट करके सारे सिलेक्ट कर लूंगा, देन ओके। अब मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से नेमिंग करनी है तो मैं दे सकता हूँ, लाइक यहाँ डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5, ऐसे सेम, नेक्स्ट एंड इंपोर्ट। तो क्या सारे इमेजेस इंपोर्ट हो गए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इमेज व्यू में यहाँ पे आया ऐप डॉट सोर्स कॉम्पैक्ट, मतलब ये इमेज है वो कहाँ से ली गई है, हमें उसकी जगह मुझे चाहिए डाइस, डाइस की इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये हटा दूंगा। और देखिए यहाँ पे रिसर्च मैनेजर में हमें कहाँ पे लिया है, ड्रॉएबल्स फाइल में। ओके, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉएबल्स में से इनपुट करना पड़ेगा। सो @ ड्रॉएबल्स, जैसे मैंने डी लिखा तुरंत आ गया ड्रॉएबल वाला। अब ड्रॉएबल्स में से मुझे डाइस 1 की इमेज लेनी है, तो यहाँ पे तुरंत उसने लिया डाइस 1, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे डाइस 1 की आ गई। अगर मुझे 2 लेनी है तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करूंगा, तो 2 देन 3 वैसे। ओके, और मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ दी हुई है, इसलिए वो सिर्फ इतने एरिया में ही वो आएगा। ओके, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं, चैट में रिप्लाई कर देना प्लीज, या कुछ अगर यूआई पार्ट समझ नहीं आए तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा वापस। यस यस, ओके ओके। सो अब हमें क्या करना है कि इसको रोल भी कराना पड़ेगा, हमें सिर्फ यूआई बना के तो वो चेंजेस नहीं होंगे, तो रोल कराने के हमें बनाना पड़ेगा एक लॉजिक। वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए अगर हमने पहले ही पढ़ा कि हमने डाइस का एक क्लास बनाया था। ओके, सेम वो डाइस का क्लास कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देंगे हम, ये यहाँ पे हमने वो सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दिया। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक है प्राइवेट, प्राइवेट एक करके आपको एक नया कीवर्ड है। प्राइवेट का मीनिंग क्या है, अगर हम अपने डेटा टाइप के आगे प्राइवेट लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि वो उसका जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ इतने क्लास में ही यूज होगा। अगर हम क्लास के बाद वेरिएबल यूज करना चाहे तो वो वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज प्राइवेट, एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा है। अगर कोई आपकी ऐप डीबग करके यूज करे कहाँ पे, अगर वो अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहे तो वो नहीं चेंजेस कर सकता। ओके, प्लस डोंट वरी, मैं थोड़ा एक बार खत्म होते हुए एक बार टाइम हो तो मैं वापस रिपीट भी करूंगा। अभी थोड़ा जिस स्पीड से जा रहे हैं सब लोग, ज्यादा लोग समझ रहे हैं तो हम वही स्पीड से जाएंगे अभी फिलहाल के लिए। सो अब हमें क्या कि बटन भी दिया हुआ है हमें। अब
हमें बटन में से इनपुट लेना हो तो कैसे लेते हैं उसका, उसके लिए ये एक कोड है कि जहाँ से हमें क्या कि हमने एक बनाया रोल बटन करके, हमने एक वेरिएबल बनाया, तो हमें कोई इसमें से इनपुट चाहिए, हमें चाहिए बटन में से, तो उसका डेटा टाइप जैसे हम दूसरे वेरिएबल में डेटा टाइप लेते हैं कि कॉलन करके हम इंटीजर लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, सेम यहाँ पे मैंने कॉलन करके लिखा बटन। अब हम बटन पे देखेंगे वहां पे रेड आ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अनरिजल्ट रेफरेंस बटन का, तो उसके लिए एक इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। हाँ, हमने इंपोर्ट कर लिया, मतलब ये बटन की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर दी। सेम यहाँ पे ओके, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करता है कि जैसे देखो यहाँ पे हमने जो भी बनाया उसकी एक आईडी है, यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी जो क्या है बटन, और इमेज व्यू की हम आईडी दे देते हैं, आईडी हम दे देंगे इमेज व्यू। ओके, सो यहाँ पे जो भी आईडी है हम वो यहाँ पे वो व्यू की आईडी देनी पड़ेगी, r.id.button। सो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे आईडी चेंज कर दे, बटन 1 चेंज कर दे, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी बटन 1। ओके ओके, सो यहाँ पे रोल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर कमांड क्या करता है कि अगर जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे वो वहां से वो उस बटन के साथ जो भी कमांड हमने जो भी टास्क दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बनाया रोल डाइस करके। अब क्या, रोल डाइस के लिए हमें उसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमें रैंडमली वैल्यू दे उसके लिए। तो हम अब बनेंगे रोल डाइस करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हमारा मेन लॉजिक होगा। ओके, सो उसके लिए एक क्लास बनेंगे हम रोल डाइस का, ये। अब क्या, यहाँ पे रोल डाइस के क्लास में देखेंगे हमने दो वेरिएबल लिए हुआ है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने डाइस। अब डाइस में मैंने कॉल करा है मेरा जो क्लास था, वो जो क्लास मैंने यहाँ पर बनाया, मतलब ये डाइस है वो वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे मैंने डाइस रोल करके वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, ये फन रोल करके जो फंक्शन बनाया था मैंने वो मैंने वहां पे कॉल करा लिया। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज हो गई है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो वैल्यू स्टोर रह जाएगी डाइस रोल में। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया है डाइस इमेज। डाइस इमेज के साथ मैंने उसका डेटा टाइप दे दिया इमेज व्यू, क्योंकि मुझे वहां पे इमेज चाहिए। सो यहाँ पे सेम कि ऊपर जैसे एरर रही है कि यहाँ पे मुझे इमेज व्यू का, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट दबाया तो इमेज व्यू का एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, और यहाँ पे एक और आ रहा है इमेज व्यू। अब ये डिफरेंस क्यों है यहाँ पे इमेज व्यू का, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने वी कैपिटल लिया हुआ है, और जबकि मैंने यहाँ पे जो आईडी दी है वो यहाँ पे इमेज व्यू में वी स्मॉल है, तो वो कंफ्लिक्ट होगा, तो अगर उसको मिलेगी नहीं तो वो एरर दिखाएगा। ओके, वहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब क्या, हमने डाइस का जो हमने जो बनाया था क्लास, उसमें क्या लिया था कि अगर 1 आएगा तो हमें 1 चाहिए, 2 आएगा तो 2 चाहिए, पर हमें क्या यहाँ 1 2 की जगह हमें चाहिए इमेज उसकी, सॉरी। सो इमेज आएगी, इमेज के लिए हमें इंपोर्ट करानी है। सेम यहाँ पे जैसे हमने r.id.image भी लिया था, हमने सेम हमें कौन से फाइल में से चाहिए, देखिए यहाँ पे हमने लिया था ड्रॉएबल फाइल में। सो r.drawable डॉट डाइस 1, सेम उसी तरह 2 सेकंड नंबर, देन थर्ड, देन 4 के लिए फोर्थ इमेज, फिफ्थ, एंड एल्स में मैंने डाल दिया 6। जो हमने जो क्लास में पढ़ा था सेम चीज पर वहां पे प्रिंट एलन की जगह हमने यहाँ पर उसकी आईडी डाल दी जो इमेज है उसकी, और वो जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे सेव होगी, यहाँ पे ड्रॉएबल रिसोर्सेज नाम के वेरिएबल वो सेव होगी। ओके, अब ये एक है डाइस इमेज, यहाँ पे डाइस इमेज ये रहा वेरिएबल अपना, और डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज। अब ये सेट इमेज रिसोर्सेज क्या करते हैं, सेट इमेज रिसोर्सेज बेसिकली जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे वो सेट कर देगा। अगर मैंने रोल किया और डाइस की वैल्यू 3 आई, तो 3 पे कौन सा है, r.drawable.dice3, डाइस 3 जो हमारा ये थर्ड इमेज है। सो
ये थर्ड इमेज यहाँ पे जाएगा ड्राइवेबल रिसोर्सेस में, और वो सेट ऑन इमेज रिसोर्सेस उस थर्ड को यहाँ पे सेट कर देगा। ओके, ये बेसिकली ओके, यहाँ तक सब मेरे साथ ओके। अब ये बेसिकली ऐप कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा दूंगा। यहाँ तक अगर किसी को कोड में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ चीज समझ नहीं है तो अभी बताओ, तो वो चीज मैं रिपीट कर दूंगा। ओके आशीष वेट। ओके, आपको अगर आप लोग साथ में कर रहे हो और आपको फिर डाउट है तो बोलना, अगर अभी आपको हो जाए तो अभी बोल देना, नहीं तो हम डिस्कॉर्ड पे वापस उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कंटेंट डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेगा? ओके, कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाइस टूल टू स्टेप में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे एक इमेज के साथ, यहाँ पे अगर हम देखें डिजाइन में तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है। वार्निंग में क्या है, बेसिकली कंटेंट डिस्क्रिप्शन के लिए वो मांगता है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि अगर हम कुछ भी करें तो उसको, अगर कोई दूसरा डेवलपर हो अगर वो करने आए तो उसको समझ आना चाहिए कि वो बेसिकली इमेज रन होने के बाद होगा क्या, इसलिए वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब वो डाइस इमेज का हर बार कंटेंट डिस्क्रिप्शन चेंज करता रहेगा। अगर फर्स्ट इमेज आई तो यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 1, देन 2 इमेज आई, सेकंड इमेज आई तो यहाँ पे चले जाएगा 2, थर्ड इमेज आई तो यहाँ पे चले जाएगा 3। बाकी कंटेंट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है वैसे। ओके, रिपीट बटन पार्ट। ओके, डिजाइन में यहाँ से देखो मैंने पैलेट से बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये बटन है वहां से सेम। फिर मैंने किया यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में गया मैं, एट्रीब्यूट्स में से कॉमन एट्रीब्यूट्स में टेक्स्ट, वहां से मैंने बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया रोल। ओके, तो यहाँ के अंदर रोल आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको कंस्ट्रेंट दे दिए, लाइक यहाँ ऊपर, देन राइट, देन लेफ्ट एंड देन बॉटम कंस्ट्रेंट, बस। बाकी मैंने कुछ नहीं किया। बाकी अब मेरे को ये बटन को यूज करना है तो मैं जाऊंगा कोटलिन वाले फाइल में। कोटलिन वाले फाइल में ये, अब मुझे क्या करना है, वो रोल बटन करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने डेटा टाइप दे दिया बटन। अब बटन क्या करेगा कि वो फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब बटन के मैंने एक आईडी दी हुई है यहाँ पे, ये उसकी आईडी है। तो अगर मुझे कोटलिन फाइल से उसको एक्सेस करना है तो वो आईडी के थ्रू एक्सेस होगा। तो फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन उस आईडी को फाइंड करेगा, जो बटन यहाँ पर वो कॉल हो जाएगा। मतलब ये रोल बटन के अंदर वो बटन एक वैल्यू आ गई। सो अब ये रोल बटन डॉट मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर क्या होता है कि जो भी हम बटन प्रेस करें तो कुछ टास्क कर रहे हैं जो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमने लिखा रोल डाइस, रोल डाइस करके जो क्लास हमने यहाँ पे नीचे बनाया, ये रोल डाइस क्लास है मेरा जो यहाँ पे कॉल होगा। ओके ओके, मैं आपको इसका एक लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। मैंने, अगर मैं अब रन करने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो ग्रेडल बिल्ड होगा, देन सारे वो चेक करेगा। उससे अच्छा मैंने एक ऐप बनाई हुई है। ओके, सबको दिख रहा है? सॉरी, आप सिर्फ चैट में बता देना यस और नो। सबको ये ऐप दिख रही है? यस, ओके। सो यहाँ पे हमने एक बटन दिया है रोल बटन, और ये इमेज, जैसे हम रोल बटन को प्रेस करेंगे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उस हिसाब से इमेज चेंज होंगी। देखो जैसे मैं रोल बटन दबा रहा हूँ वैसे इमेज चेंज हो रही है। ओके, सो ये हमारे चारों पाथवे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मतलब आप भाई जो रिसोर्सेज आपने टीम गूगल टीम ने दिए हुए हैं, आप उसमें करेंगे तो पहले 4 पाथवे आपके खत्म हो गए, और आपको टोटल आई थिंक 7 और 8 बैजेस आपको मिल जाएंगे इसके बाद। ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू स्लाइड्स। ओके,
अभी कुछ क्वेश्चन है किसी को, तो आप अभी पूछ सकते हो। ओके, वो रोल का एनिमेशन ऐड करना हो तो उसके लिए एनिमेशन की अलग से लाइब्रेरीज आपको यूज करनी पड़ती है। वो अभी वो थोड़ा हाई लेवल में है, तो अभी फिलहाल के लिए ये इतना ही है। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो अभी बोल दो, या फिर ओके, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है हमारा। सो डाउट सेशन हम डिस्कॉर्ड पे कंडक्ट कर देंगे। जो भी आपके डाउट हो वो आस्क फॉर हेल्प में रख देना, या फिर पर्सनली आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। कुछ सीखना हो तो हम मेंटरिंग सेशन में हम सिखा देंगे अगेन से। सो अब हम देखेंगे, हम ये दो ऐप्स है जो हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टडी जैम में। वो अभी अनाउंस होगा कुछ दिनों में। ओके, ओके, सो गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन with same energy and enthusiasm, and Uh, if you have any doubt, you know where you can contact me. Okay. Thanks, Ojas. Thanks. Just a quick question. Can you please show how one can go through the Google developers documentation and all to earn those badges and start with the second unit? Okay, Yeah, yes, just a quick introduction type, like how to yeah, navigate through the whole documentation and all. yeah, ओके, उसकी लिंक आप लोग प्लीज उसमें पेस्ट कर दोगे चैट में। Yeah, just a minute. ओके, क्या है गॉट लिंक? ओके, मैंने चैट में, सॉरी, मैंने पेस्ट कर दिया है एक लिंक। Yeah, okay. ओके, सो वो लिंक थ्रू अगर हम चाहेंगे, सो यहाँ पे हमें मिलेगा एंड्रॉइड स्टडी जैम। यहाँ पे हमें दो न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक में जाना है। यहाँ से अगर सब लोग मेरे साथ है ना, तो हम चलते आगे। Yeah, ओके, सो न्यू टू प्रोग्रामिंग में हम लोग स्टार्ट कोर्स करेंगे। स्टार्ट कोर्स के बाद यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमें आएगा। यूनिट 1 जो हमने आज और कल 2 दिन में मिलके खत्म किया है, तो एक्सप्लोर में जाएंगे। और यहाँ पे हमने जो 4 पाथवे से जो हमने ये 2 दिन में खत्म किए, सो अगेन यहाँ पे एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पे कुछ वीडियोस होंगे, देन यहाँ पे कुछ कोड लैब्स होंगे, वो कोड लैब सबको लेनी है। देन एंड में हमें मिलेगा क्विज। हम जैसे, अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे कोड लैब, टेक कोड लैब करोगे, और जैसे ही कोड लैब यहाँ पे खत्म होगा आपको एक बैज मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए, मैंने जैसे ही कोड लैब एंड पे गया मेरे को एक बैज मिल गया। वैसे ही आप जितने कोड लैब खत्म करोगे उतने आपको बैजेस मिलेंगे। ओके, एंड देन ये क्विज खत्म होने के बाद आपको एक बैच मिलेगा, ये पूरे का, ये पूरा ट्रैक खत्म करने के लिए बैच मिलेगा। वैसे हर एक का एक एक बैच, मतलब आपको 4 बैचेस टोटल इसमें मिलेंगे यूनिट 1 में। और जो okay, मैंने कल करवाए थे वो 3 बैचेस, और टोटल 7 बैचेस आपके प्रोफाइल पे हो जाएंगे। okay. Great. So suppose के अगर I miss the session, right? अगर मैंने ये session 2 miss कर दिए, then I can navigate through this documentation and you know मैं वापस यहाँ से सब पढ़ सकता हूँ, right? यस, यस, वहां पे दिया हुआ है सब कुछ। Okay. जो चीज मैंने समझे वो सारी चीजें दी हुई है। अगर उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो डिस्कॉर्ड पे आप कांटेक्ट करिए, मैं वहां पे वापस समझा दूंगा। Okay, that's great. Thank you so much. वेलकम। Yeah. Bhavik, would you like to get here? So, thanks, Ojas. Thank you, everybody. I admire your presence. Also, I really appreciate many of you are on Discord servers. Guys, do change your usernames with your real name so that we can communicate more better. And we are here to grow as a community, and we'll help each other to grow. So yes, do check your name, and we will be sharing your feedback form in the chat. Please fill the form and do acknowledge your presence. And please check your details before filling the feedback form. So stay tuned. We'll for the future sessions. Bye bye. Stay tuned. See you soon. ओके, थैंक यू एवरीवन।
Okay, we'll wait for 2 minutes so you can navigate through the links and all, and then I'll end the session. Thank you everyone for joining in.